हाँ, तो देखिए आज जो है रविवार का दिन है, तो ऑन सैटरडेज वी डू 2 वर्ड्स। आप लोग सबको 2-2 वर्ड शेयर करते हैं। संडे को हम लोग कुछ अलग-अलग काम करते हैं, कभी अंताक्षरी, कभी ईडीएम, कभी डिबेट, कभी कुछ ग्रामर सीखना हो। हम लोग 10th साइंस की पढ़ाई की थी आज, और कभी-कभी वी पिक अप अ टॉपिक और अ पर्सनालिटी टू टॉक अबाउट। तो पिछले क्लास में ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट आप में से कुछ लोगों ने बोला कि भाई हम लोग आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे और बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है इंडिया का, उनके बारे में बात करेंगे। तो इस पे बात हम लोग पहले कर चुके हैं और बच्चों ने पहले शेयर किया है, बट सिंस यू ऑल वांटेड टू टॉक अबाउट हिम, वी हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, सो आई थॉट कि ठीक है, विल टॉक अबाउट हिम। बट आप में से जो लोग अगर कोई चाहें कि एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात कर चुके हैं और उसको उनके बदले किसी और के बारे में बात करना चाहेंगे, तो देन यू कैन चूज a personality of your choice and you can talk about him or her. But बाकी सभी बच्चे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करें। हाँ नैतिक, आप कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर हो गया था, वही हमें लगा याद दिलाने के लिए। ओके, ठीक है। तो चलिए, तो जो लोग तैयार हैं अपना हाथ खड़ा करेंगे और देन यू विल से फ्यू लाइंस अबाउट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, or if you want to talk about anybody else, you can just pick a personality of your choice and you can talk. चलिए, नैतिक ने हाथ खड़ा किया। नैतिक, आप शुरू कीजिए बेटा। So we will talk about. So today we will talk about Dr. APJ Abdul Kalam. Sir, Dr. APJ Abdul Kalam belongs to a small town and worked hard to become a scientist. And he is also known as a missile man of India. He is famous for his work in Indian space and missile programs. Dr. Kalam became the 11th president of India. And he had also dreamed to make India to developed country by 2020. And he is inspiration of many youth. He wrote many inspiring books like Wings of Fire. And sir, Dr. Kalam received many rewards, including the Bharat Ratna, and that is Indian highest civilian honor. He is also live simple life in his village, and he is also love for teaching. And his many scientific achievement in India's first satellite, and his launching vehicle and nuclear test, etc. That's all, sir. बहुत बढ़िया। चलिए, तो चलते हैं प्रिया कुमारी के पास। प्रिया, बोलिए बेटा। Hello, sir. बेटा। Today my topic is Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam was a great Indian scientist. He is also known as the Missile Man of India. So known. Okay, sir, no. His full name was Abul Pakir Janublabi. Sorry, sir. His full name was Abul Pakir Janublabuddin Abdul Kalam. He was born on 15th October 1931 at Rameswaram in Tamil Nadu. His father's name was Janulabuddin and mother's name was Asiamma. Dr. Kalam did engineering from Madras Institute of Technology. He successfully led the development of Agni and Prithvi missiles. Missiles. Sorry, sir, missile.
He died on 27th July 2015. That's all, sir. Thank you. बहुत बढ़िया। और देखिए एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, व्हेन यू से समथिंग एंड यू मेक अ मिस्टेक, यू डोंट हैव टू फील सॉरी अबाउट इट, इट्स परफेक्टली फाइन। गलती तो करेंगे तभी तो सीखेंगे, गलती करने से ही सीखने का शुरुआत होता है, ठीक है। सो जस्ट फील हैप्पी अबाउट इट कि भाई आज ये गलती किया, मतलब कुछ तो सीखेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। चलिए चलते हैं शिवम के पास। शिवम बोलिए भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बेटा। Dr. APJ Abdul Kalam was a great scientist and the 11th President of India. His full name was Abul Pakit Jauzuddin Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam was born on 15th October 1981 Rameswaram, Tamil Nadu. His father's name was Jahamuddin and mother's name was Aismau. He was known as the Missile Man of India. After graduation, Abdul Kalam joined the Defense Research and Development DRDO and later the Indian Space Research Organisation or ISRO. He had played an important role in the Pokhran nuclear test in 1996. He has written many books. His autobiography Wings of Fight is famous among students. And that also thank you sir. Okay. तो इसमें देखिएगा शिवम, अगेन नॉट ओनली शिवम, एवरीबॉडी, तो जो क्लास के बाद जो वीडियो डालेंगे ना, तो इसमें आपका वाला पोर्शन को ना एक बार फिर से सुनिएगा एंड देन यू विल ट्राई फाइंडिंग आउट कि यहाँ पे क्या क्या चीज को हम लोग थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि एक चीज होता है स्पीड, हम लोग को होता है कि भाई हम लोग हिंदी बोलने वाले लोग हैं, जल्दी से अंग्रेजी बोल के खत्म करो झंझट, वो मत कीजिएगा कभी, क्योंकि जैसे आप जल्दी से करना चाहिएगा, जल्दी का काम शैतान का। आप लोग शैतान नहीं बोल रहे, मतलब एग्जाम्पल बोल रहे, ठीक है। तो आराम से बोलना है, एक्सपीरियंस करके फील करके बोलना है। तो अगर जल्दी नहीं करना है, रुक रुक के बोलिएगा। और दूसरा है कि कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण होता है ना, उसको उसको उसके ऊपर थोड़ा जोर डालना पड़ता है। जैसे अगर इम्पोर्टेंस बोल रहे हैं तो इम्पोर्टेंस बोल के ही छोड़ेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक बार सुनिएगा, आप लोग सबको सुनिए, अपना अपना जब स्पीच जो आप लोग बोलते हैं या और लोग क्या बोल रहे हैं उसको भी एक बार सुनिए, एंड देन यू विल बी एबल टू रिलेट कि हाँ कहाँ कहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए अभी हम जानबूझ के बीच में नहीं रोक रहे थे, नहीं तो क्या होगा कि आपका सोचने का प्रक्रिया रुक जाएगा, इसलिए हम नहीं रोक रहे थे। लेकिन हम चाहेंगे आप लोग सभी को ही क्लास का वीडियो को बाद में देखिए, खुद क्या बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, वेयर आई कैन डू करेक्शंस, मतलब कहाँ कहाँ पे सुधार हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलते हैं। यहाँ से हम आप म्यूट पे चलिए और हाथ नीचे कर लीजिए। चलते हैं आंचल के पास। Good morning, sir. Today's our topic is APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam was born on 15 October 1931 in Muslim family in Rameswar, Tamil Nadu. He specialized in aeronautical engineering from Madras Institute of Technology. He was an Indian aerospace scientist who served as the 11th President of India from 2020 to 2007. His focus is on transform India into developed nation by 2020. ट्रांसफॉर्म इंडिया है ना, Transform. Yes. ट्रांसफॉर्म, तो थोड़ा जोर लगाएंगे बस। ओके, No, that's all, sir. बहुत बढ़िया। तो और आपके साथ में दीपक,
नंदिनी कोई है? No, sir. ओके, तो चलते हैं फिर अंकित के पास। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today we topic is APJ Abdul Kalam, and the sentences are: APJ Abdul Kalam was born on October 15th, 1931. हम्म, He was a removed Indian scientist and a statesman. हम्म, He served as India's 11th president for 2002 to 2007. हम्म, He was known as the missile man for his work. हम्म, He wrote books like Wings of Fire and India 2020. हम्म। He did on July 27, He died. 2000. He died on July 27, 2007. जो भी। He was a strong advocate for education and youth empowerment. हम्म, Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया। तो चलते हैं। अरे आदर्श नगर से बच्चे लोग हाथ खड़ा किए थे, फिर हाथ नीचे चला गया। Yes, sir. बोलिए। Hello, sir. My name is Anmol. अनमोल बोलिए बेटा। Today's my topic is Dr. APJ Abdul Kalam. हम्म, Dr. APJ Abdul Kalam was a great scientist of India. साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। He was born on 15 October 1931 in Rameshwar, Tamil Nadu. हम्म, He played a very important role in the Pakar natural tests. पोखरण पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। Yes, sir. हम्म, He had been honored with Bharat Ratna for his contribution। contribution. Dr. Kalam died on 27 July 2015 in Shillong. डॉक्टर Okay. कलाम डाइड ऑन द डेट है ना, डाइड है ना। डिड मतलब होता है काम करना, डाइड मतलब हाँ। ओके, चलिए भाई, और कौन बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, सर कोशिश कर रहे हैं लिखने की। बहुत बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया बेटा, आई लाइक इट। अब कौन बोल रहे हैं? आदर्श नगर से और कोई नहीं? अनमोल का, सानिया और लोग कोई नहीं बोल रहे हैं? नो सर, अभी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ी बोलने की। ओके ठीक है, नहीं नहीं प्रैक्टिस करते रहिए। ओके आगे बढ़ते हैं। कन्हई से कौन बोलना चाह रहे हैं भाई? Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my topic is Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam was a great scientist of India. ग्रेट, ग्रेट नहीं, ग्रेट। Great. अब उसमें He was born on 15 October 1931 in Rameswaram, Tamil Nadu. रामेश्वरम तमिलनाडु। Rameswaram, Tamil Nadu. He He was the 11th President of India. देख, प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट। हम देखिए थोड़ा सा बेटा आप जोर लगाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि जो होता है ना, जो वर्ड का उच्चारण, जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ही वॉज द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट तो मतलब थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलिए। President. प्रेसिडेंट, 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 हाँ President. प्रेसिडेंट, हाँ बोलिए। He is also known as the
missile man of India. ही इज ऑल्सो नोन, KNOWN होगा, है ना, नोन, उनको जाना जाता है। He was awarded with Bharat Ratna for his कंट्रीब्यूशन, योगदान, है ना। He died on 17 July 2050 in Shillong. ही डाइड। Died. तो देखिए यहाँ पे आप लोग को हम थोड़ा सा लगेगा कि सर जो है परेशान कर रहे हैं, बीच में रोक देते हैं, कुछ बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन दैट इज द पर्पस। एक्चुअली क्या होगा ना, जो भी बोलेंगे, देखिए आपका अंग्रेजी का असर तब होगा जबकि उसका उच्चारण सही होता है। वो सिर्फ अंग्रेजी नहीं, कोई भी भाषा हो। अगर आप, जैसे कि हम चाइना में भी मतलब काफी टाइम रहे हैं, लेकिन हम जो चाइनीज बोलते हैं ना, उसमें किसी को कोई भी जो है मतलब हमको इज्जत नहीं दे पाएगा, क्या कि मैं उच्चारण वैसे ही लूटा पिटा हुआ है। चाइनीज बहुत मुश्किल लैंग्वेज भी है। तो कोई भी लैंग्वेज होता है ना, उसका प्रोनाउंसिएशन जब तक आप सही से नहीं करेंगे, उसका असली जो है पावर नहीं आता है ना। तो उससे हम लोग उच्चारण पे जोर डालेंगे, और हर एक वर्ड को जब क्लास का वीडियो बाद में देखिए, रिवीजन कीजिए, कोई भी वर्ड ऐसा, प्रेसिडेंट अगर मान ली प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आ रहा, तो प्रेसिडेंट, 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 उसको 2 बार 4 बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा ना, फिर वो जुबान पे चढ़ जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए फिर आगे बढ़े। Dr. APJ Abdul Kalam life is a great inspiration for all of us. ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। इंस्पिरेशन, Inspiration. इंस्पिरेशन, हाँ। His full name was Abul Fakir Jainuddin Abdul Kalam. हो गया सर। बहुत बढ़िया। तो देखिए बेटा, आप कोशिश बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए आई लाइक इट। ओके, तो हम चाहते हैं कि और कोशिश करके इसको और परफेक्ट बनाएंगे। ठीक है, दैट विल बी आवर गोल। ओके, चलिए चलते हैं रुद्रा के पास। रुद्रा बोलिए भाई। हेलो सर। लो बेटा। Today my topic is Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam, known as the Missile Man of India, was one of the most esteemed scientists and the 11th President of India. His contribution to science, particularly in aerospace and defense technology, as well as his inspirational leadership. APJ Abdul Kalam, born on October 15, 1931 in Rameswaram, Tamil Nadu. He was a brilliant student and eventually graduated in aerospace engineering from Madras Institute of Technology. He was part of the team that developed India's first satellite launch vehicle, SLV-3, which successfully deployed the Rohini satellite in 1980. Kalam was a key figure in India's Pokhran 12 second nuclear test in 1998, which established India as a nuclear armed state. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो चलते हैं आपके साथ साजिद। Hello, sir. बोलिए बेटा। Today is my topic about APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam, born on October 15, 1931 in Rameswaram, India. He was a prominent scientist and the 11th President of India. He played a critical role in India's space and missile programs. He is also known as Missile Man of India. Kalam studied aerospace engineering and worked with ISRO and DRDO. His leadership contributed to the successful launch of the satellite Rohini and the development of the
Agni and Prithvi missiles. His book Wings of Fire became an inspirational bestseller, sharing his life story and ideals. He passed away on July 27, 2015, while delivering a lecture at IIM Shillong. His legacy lives on through his contribution to science and education. Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं सुमंत के पास। सुमंत बोलिए भाई। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my topic is Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam, his full name was Abul Pakija Jalaluddin Abul Kalam. He was born in Tamil Muslim family. Tamil Muslim family. He was India's first become prime minister. He was very popular among children. If you want to sling like a son, first burn like a son. If you want to shine like sun, you have to first burn like sun. Shine मतलब चमकना। APJ Abdul Kalam born 1591 Rameswaram. The APJ Abdul Kalam is foremost name in the whole world. He is counted among the greatest scientists of the 21st country. 21st century। 21st century है ना। That's all, sir. Thank you. बहुत बढ़िया। तो अभी चलते हैं रौनक के पास। आपके साथ प्रियंका भी है? नहीं सर। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, सर गुड इवनिंग। जो लोग नहीं बोल रहे बच्चा, आप लोग म्यूट पे रहिएगा ताकि हाँ चलिए रौनक बोलिए भाई। Today's my topic is Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam was a great scientist of India. He was born on 15 October 1931 at Rameswar in Tamil Nadu. His full name was रामेश्वरम है शायद से। His father name was Jamuddin. His mother name was Isma Jamuddin. He was a very bright and hard-working student since his childhood. He was very bright and hardworking. In his childhood, he wanted to become a fighter pilot. In the year 1969, he joined the ISRO. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। अभी देखिए बच्चे लोग, जो लोग नहीं बोल रहे हैं, हम लोग म्यूट पे रहेंगे, नहीं तो क्या होगा कि बैकग्राउंड नॉइज आएगा, है ना। जब आपका नंबर आएगा, आप जब तैयार हो, आज हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बोल रहे हैं। अगर आप कुछ बोलना चाहें इनके बारे में तो बोल सकते हैं इंग्लिश में,
अगर इंग्लिश में नहीं तैयारी कर पाए हैं, हिंदी में 2 लाइन बोलना चाहते हैं तो वो भी बोल सकते हैं ना। आप हिंदी में बोलेंगे, इसको हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है। तो जब आप तैयार होंगे तब ऐसे हाथ खड़ा करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके हाथ खड़ा करेंगे जैसे बाकी बच्चों ने हाथ खड़ा किए हैं। फिर आपको बोलने का, आपका नाम पुकारा जाए तभी आप बोलेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। सुमंत आपने हाथ खड़ा किया हुआ है बेटा। आप बोल चुके हैं? प्रियंका बोलने वाली है या आपने गलती से हाथ खड़ा किया है? ओके, चलिए चलते हैं वीर और क्रिस के पास। Yes, sir. बोलिए बेटा। Sir, today my topic is Dr. APJ Abdul Kalam. The APJ Abdul Kalam was born on 15th October 1931, Rameswar, and he was dead on 27 July 2015 in Ceylon, where his age was 83 years. He have got awards like Bharat Ratna, Padma Vibhushanam, Veer Savarkar Award. The full name of APJ Abdul Kalam is Abul Patil Jainuddin Abdul Kalam, and the Abul is the name of his great-grandfather, and Patil is the name of his grandfather, and Jainuddin is the name of his father. And Abdul Kalam was his own name. He was advanced president of India from 2002. He got education. He studied in Madras Institute of Technology, Anna University, 1955 to 1957. That's all. बहुत बढ़िया। तो ओके, Yes, sir. Sir. हाँ बोलिए बेटा। Sir, good evening, sir. Good evening, Today बेटा। my topic is APJ Abdul Kalam. My sentences are APJ Abdul Kalam full name Abul Pakir Jainuddin Abdul Kalam. He was born on 1931 in a city Rameshwaram in Tamil Nadu. He is also known as Missile Man of was the project leader of Indian satellite launch vehicle at ISRO. Dr. APJ Abdul Kalam served as President of India in 2002. That's all. बहुत बढ़िया। तो अभी चलते हैं अरुला गुप्ता, बोलिए भाई। Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, बोलिए। Today my topic is APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam was a great scientist and of India. His full name was Abul Jainuddin Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam was born on 15 October 1931 is Rameswaram, Tamil Nadu. तो डीआर जो है ना वो है डॉक्टर एपीजे। डीआर का मतलब डॉक्टर। His father name was Jainuddin. Mother name was Asivayamma. That all, sir. Okay. तो अभी देखिए यहाँ पे कौन कौन लोग नहीं बोले हैं। लेट्स डू अ क्विक चेक। हाँ, अच्छा देखिए यहाँ पे जावेद इकबाल नाम से बच्चे लोग हैं। आप लोग का नाम बताइए बेटा, हम भूल गए, कल आप लोग ज्वाइन किए थे।
My name is Razia Iqbal. राजिया इकबाल। और दूसरा बच्चा? जी। अच्छा, सिर्फ राजिया इकबाल। तो ठीक है, तो राजिया इकबाल ये बताइए, आपने कुछ तैयारी किया है आज की क्लास के लिए? कुछ भी सुनाइए, कुछ भी। जी। हम लोग सबको एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात कर रहे हैं, आप चाहें तो कुछ और भी सुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई 2 वर्ड ही सुना दीजिए। इंट्रोडक्शन है तो जे जाने शुरू होता है। हाँ, जो जानते हैं बता दीजिए भाई, कोई बात नहीं। My father name is Javed Iqbal. हाँ। My mother name is Sitara Parveen. हाँ। My sister name is Rabia Iqbal. हाँ। My grandfather name is Muhammad Alauddin. Mohammed Mustaq Alam. ओके, तो आपको एक काम देते हैं, ठीक है? अब काम ये है कि आपको अगले क्लास से पहले, ठीक है, अगला क्लास अगले शनिवार को होगा, तो आपको कोई भी हर रोज 2 वर्ड नया सीखना है, 2 नया वर्ड सीखना है, ठीक है? और उसके ऊपर 2 सेंटेंस बना करके रेडी करना है, ठीक है? अगले क्लास में आप आपको सुनाएंगे, ठीक है बेटा? जी। ठीक है तो? जी। ठीक है, और एकदम शर्माना नहीं है, गलती होगा होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलती होने से कोई समस्या नहीं है, ठीक है? जी। गलती करके हम लोग सीखते हैं, इसलिए गलती करने में कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। आशीष खड़ा किया है, आप बेटा म्यूट पे चले जाइए, ठीक है? क्योंकि जब आप नहीं बात कर रहे हैं तभी आप म्यूट पे रहेंगे, ताकि बाकी लोग को डिस्टर्बेंस नहीं। ओके, चलिए आशीष बोलिए भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Dr. APJ Abdul Kalam was a great Indian scientist. He is also known as the Missile Man of India. His full name was Abul Pakir Janil Buddin Abdul Kalam. He was born on 15th October 1931 at Rameswaram in Tamil Nadu. Kalam was a bright and hardworking student. He was great contribution to the development of Indian missile projects, Agni, Prithvi, Trishul, etc. He becomes the 11th president of India. He became. Okay. He became. Dr. APJ Abdul Kalam wrote many books, but he most notable work was India 2020, which have an action plan to make India a superpower. He was a man of simplicity and integrity. Integrity. Okay. He was so busy at work that he rises up early in the morning and work till late hours after midnight. He died during delivering a lecture to students in Shillong by sudden cardiac attack in 2015. That's all, sir. बहुत बढ़िया। ओके, तो चलते हैं फिर अमित कुमार के पास। अमित कुमार मंडल, बोलिए भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। My sentences there are APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam born October 15, 1931, Rameswaram, India. Died July 27, 2015, Shillong. Was a Indian scientist and politician who played a leading role in the development of India.
missile and nuclear weapon program. He was president of India from 2002 to 2007. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो आपका नाम क्या बेटा? अभिषेक कुमार मंडल। अभिषेक कुमार, ओके। हाँ, नहीं आप बहुत रेगुलर नहीं आते हो क्लास में, लेकिन आप को एक दो बार पहले आप ज्वाइन किए हो और आज आपने काफी अच्छा किया, तो दैट्स व्हाई आई वाज क्यूरियस। आप रेगुलर आएंगे तो बेटा और यू विल सी मोर इम्प्रूवमेंट एक्चुअली, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन लोग छूट रहे हैं। लेट मी डू अ क्विक रोल कॉल। तो अभिषेक ने बोल दिया, आंचल ने बोल दिया, अंकित ने बोल दिया, अरुणा गुप्ता ने बोल दिया, आशीष जी ने बोल दिया, जावेद इकबाल, वहां पे बच्चे लोग हैं, वहां लोगों ने बोला। आदर्श नगर से एक ही बच्चे ने बोला। ओके, सुनैना, हाँ आपके पास हम पहुंचने वाले थे अभी। सुनैना बोलिए भाई। सुनैना बोलिए आप। Good morning, sir. Today my topic is APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam is known as missile man and president. He was famous as a former president of India, a renowned scientist and engineer. That's all, sir. आपका नाम भूल जाते हैं। रिया। हाँ, रिया। रिया, अच्छा। तो बहुत बढ़िया रिया, आप दूसरी या तीसरी बार सुन रहे हैं। यू आर डूइंग वेरी गुड बेटा। सुनैना कहाँ गई? सुनैना कोई बोलने बोलिए भाई। नहीं, अभी वर्ड तैयार कर रही है। अच्छा। तो देखिए भाई, एक ऐसा है, ये टीचर थोड़ा बदमाश है, सही बच्चों को परेशान करता है। एंड इट इज ऑल अबाउट, आप पार्टिसिपेट करेंगे तभी आप सीखते हैं, इसलिए हम सबको पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख रहे हैं कौन कौन लोग छूट रहे हैं। तो नैतिक, रुद्र, सबने बोला। ये लोग बात नहीं करें, म्यूट पे चलिए भाई, नहीं तो बैकग्राउंड नॉइज नहीं फिर। ओके, तो अरुणा गुप्ता ने बोल दिया। जो लोग बात नहीं करें वो म्यूट पे चले जाइए, नहीं तो फिर थोड़ा बैकग्राउंड आ जाता है इसमें। बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, बोलिए। My name is Rabia Iqbal. हाँ, My father name is Javed Iqbal. My mother name is Sitara Parveen. और बोलिए। तो देखिए बेटा, तो रबिया इकबाल और आपका इंट्रोडक्शन आपने दे दिया। अगली बार के लिए बेटा, अगले क्लास में आपको 2 वर्ड सुनाना है, ठीक है। और 2 वर्ड से सेंटेंस बना के, कि भाई ये मेरा 2 वर्ड है, इससे ये सेंटेंस बनेगा, है ना, जैसे बाकी बच्चे लोग सुनाता है। और गलती हो कोई बात नहीं, गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एकदम मजबूती के साथ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। गलती हुआ तो हम सिखाएंगे, है ना। सर, ग्रैंडफादर, नाना दादा का दोनों का बोल सकते हैं। बोल दीजिए। ग्रैंडफादर मैन इज अलाउद्दीन मोहम्मद मुश्ताक अली। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलिए बेटा, आप अगले क्लास के लिए तैयारी करके आइएगा। और डेली जो है ना, दोनों भाई बहन जो है आपस में कुछ नया वर्ड बनाए सीखिए, और उससे सेंटेंस बना करके एक दूसरे से डिस्कस कीजिए, फिर अगले क्लास में आके हमको सुनाइएगा, ठीक है। चलिए, तो एक बार क्विकली देखते हैं कि कौन कौन लोग
बोल चुके हैं? कौन लोग बाकी हैं? सब लोग बोल चुके हैं तो ये बात नहीं। तो ये बताइए हमको, सुमन, प्रियंका है या नहीं? प्रियंका नहीं है लगता है। नहीं है सर। नहीं है, कोई बात नहीं। सुनैना, आप बोल पाएंगे? ओके, तो चलिए फिर उस केस में अगर आप लोग तैयार नहीं हैं, अगर कुछ और नहीं शेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग को एक इडियम सुनाते हैं, एक मुहावरा सुनाते हैं, उससे हम लोग कुछ सेंटेंस बनाएंगे एंड देन वी विल रैप अप आवर क्लास। ठीक है? तो अब आप लोग तैयार हैं इसके लिए, इडियम के लिए? तो आई विल, देखिए ये अपना स्ट्रैटेजी रहेगा कि मतलब जो क्लास में जब जब बोर होने लग गए कि कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तब जो है कोई एक नया इडियम सीखेंगे, उससे सेंटेंस बनाएंगे और उसके क्लास को खत्म कर देंगे। ठीक है? तो आज के क्लास में जो हमारा इडियम है, संगम कुमार, आपने कुछ नहीं बोला बेटा, बोलना चाहेंगे? ओके, ठीक है। तो आज का इडियम है हमारा फेस द म्यूजिक, मतलब म्यूजिक से सामना करो। तो वैसा एक्चुअल मीनिंग नहीं होता है इडियम के टर्म में। व्हेन यू से फेस द म्यूजिक, मतलब बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस और टू कन्फ्रंट द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है? मतलब अगर आप, अब एक सीधा सा एग्जांपल है, इफ यू कम टू द इंग्लिश क्लास एंड डोंट पार्टिसिपेट, you will end up facing the music when you go for interview। मतलब इंग्लिश क्लास में आप आएंगे और इंग्लिश का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर देख लीजिए भाई इंटरव्यू में जो होना है। सो फेस द म्यूजिक मतलब बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है? मतलब धमकाने जैसा चीज है ये। डोंट कीप ऑन ईटिंग, योर डाइजेस्टिव सिस्टम विल हैव टू फेस द म्यूजिक। ठीक है? इफ यू आर हैविंग पेन इन योर knees and you don't see a doctor, be ready to face the music। तो ये धमकाने वाली चीज है। ठीक है? तो चलिए, तो हम ये 3 एग्जांपल आप लोगों को सुना दिए। अब हम चाहेंगे कि आप लोग में से जो भी रेडी हैं हाथ खड़ा करेंगे एंड देन यू विल से अ फ्यू सेंटेंसेस विद द इडियम फेस द म्यूजिक। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। सो इडियम फिर से रिपीट कर रहे हैं, फेस द म्यूजिक मतलब बी रेडी फॉर द कंसिक्वेंसेस और नतीजे के लिए तैयार रहिए। कोई नहीं बोलेंगे फेस द म्यूजिक पे? यू गाइस डोंट वांट टू फेस द म्यूजिक? रुद्र, नैतिक, बोलिए भाई। सुना है ना? मतलब जो लोग भी हिम्मत करें, सुना है, और हिम्मत करना ही चाहिए। अंकित बोलिए भाई। देखिए अंकित ने बोनी किया है। अंकित बोलिए भाई। After after quitting his job, he had to face the music and explain his decision to his family. वेरी नाइस। Thank you, sir. और एक ही सेंटेंस में कैसे होगा? Yes, sir. ओके, और बाकी लोग मैदान में कोई आएंगे टू फेस द म्यूजिक? If you don't do your homework, you will ready for phase of music. हाँ, तो इफ यू डोंट डू योर होमवर्क, बी रेडी टू फेस द म्यूजिक।
वही धमकाने से चीज है कि देख लेना, तुम देख लेना ये चीज, वैसा ही है ये। ओके, ठीक है सर। एनीबडी एल्स? आंचल? He नैतिक? faced, he faced the music after quitting his job. She हाँ। faced the music for her mistake. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। और लोग कौन सुना रहे हैं? नैतिक, रुद्रा, आंचल, वीर, क्रेस, रौनक, साजिद, कोई तो सुनाइए भाई। Good evening, sir. बेटा, Sir, some sentences are: he knew he had made a mistake, and now he had to face the music. After speaking class all week, he finally had to face the music. When the teacher called her parents, she had to face the music. It is time to face the music and take responsibility for what happened. क्या बात, They broke the rules and now they have to face the music. बहुत बढ़िया। Instead of running away from his problems, he decided to face the music and deal with his parents. That's all, sir. Thank you. बहुत बढ़िया, मतलब शानदार सेंटेंसेस, बहुत बढ़िया। बोलिए भाई, if anybody else is getting inspiration to say few sentences, and again it's all about how you participate. अगर participate करते वक्त शर्माएंगे, then be ready to face the music. चलिए, who's going next? Nobody? Okay. Maybe you guys are tired now. It's Friday is over. Sorry, Sunday weekend is over. अब कल से स्कूल शुरू है, तो that's what you are probably stressed about. So I'll let you guys go. आज का हम लोग क्लास को यहीं ब्रेक करते हैं, and then we'll meet again on next Saturday. But again with the promise that if you guys are joining the class, you have no other option but to participate. क्योंकि अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मामला आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है? So be ready to participate, be ready to make mistakes, take pride in making those mistakes, and be excited about learning from it. हाँ सुनैना, बोलिए भाई। Good morning, sir. Be a man and face the music. You can face the music later. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो वही कोशिश करते रहिए, मतलब that's why what I keep emphasizing on, कि अगर सीखना है कुछ, मतलब जो बोलते हैं ना, डॉक्टर को अगर जांच करना होता है कि सही के अंदर में क्या समस्या है, तो उसको लिटरली सारा गंदा चीज देखना पड़ता है खोल के, राइट? कि हाँ, मतलब यहाँ पे काट फाट करेगा, उधर चीरेगा, उधर करेगा, एंड दैट इज द ओनली वे। कुछ सीखना है तो एकदम उसके अंदर घुसना पड़ेगा, सही गलत, अच्छा बुरा कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है? तो बी कॉन्फिडेंट अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स। यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट कि हाँ हम गलती बोलेंगे तो कौन हंसेगा, क्या करेगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट योर क्लियर इंटेंट ऑफ लर्निंग समथिंग। और सीखने के लिए शर्म का कोई जगह नहीं है। जो लोग शर्मा बोलते हैं, हम लोग क्या मतलब घर में बोलते थे हम लोग छोटे थे, तो कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। तो शर्माते रहेंगे तो पीछे छूटने का संभावना बढ़ जाएगा, इसलिए शर्माइए मत, काम पे लगिए। ऑलराइट, चलिए, विद दैट नोट लेट्स ब्रेक फॉर नाउ एंड विल मीट अगेन नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है? चलिए बच्चों, टेक केयर एंड सी यू गाइस नेक्स्ट सैटरडे। और क्लास का वीडियो देख लीजिएगा, क्या है कि उससे आपको रिवीजन करने में मदद मिलेगा, और
कुछ जो आपने बोला था, जो किसी और ने बोला था, उससे क्या क्या सीख सकते हैं, दैट इज योर टेक अवे। सिर्फ आपके खुद के पढ़ने से बोलने से नहीं होगा, दूसरों ने क्या बोला था, क्या कैसे बोला था, उसको ध्यान देंगे तो उससे भी सीखने को मिलेगा। ऑलराइट, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में सैटरडे। मैं क्लास का वीडियो थोड़ी देर में अपलोड करता हूँ, है ना।